will discuss mainly human eye. In class 10th now human eye is been omitted, but still we will study human eye, function of iris and pupil, and we will study about rods and cone shaped cells, persistence of vision and range of normal human eye, further myopia, hypermetropia, which are diseases of human eye. But let me tell you, we are doing it according to class 8, so I'll give you the basic of myopia and hypermetropia. We'll make one more video of defects of vision according to class 10 later on, in which we will discuss the correction, everything with the help of the ray diagrams. Human eye, the most important and most sensible and most sensitive organ is this human eye. ठीक है ना? If even a small dust particle strike it, irritation gets started. ठीक है ना? अगर और किसी बॉडी पार्ट को आपको हिट भी हो जाए या मतलब डस्ट पार्टिकल गिरते भी रहे या कुछ भी तो कुछ नहीं होगा, पर अगर हमारी आईलिड खुली हो, पलक इज आईलिड, और एक डस्ट पार्टिकल भी कॉर्निया को टच करे तो इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना? तो आई सबसे सेंसिटिव है पूरे बॉडी के अंदर, अगर आप बोले तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है. ये एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पर आप ह्यूमन आई को समझ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, एंड working of this human eye I'll tell you in detail in paragraph, that you have to write in paragraph form. Notes are also there with me of human eye and all the chapters that you can take from me. I'll upload those notes, you can download it from there also, right? Okay, first of all the human eye. First of all we'll discuss all the parts one by one. First is eyelid, palak. Eyelid is the covering of human eye that doesn't allow any dust particle or anything to go inside the human eye, right? Then this portion, outer one, that is cornea. There is a hole in the middle that is called pupil. We Indians have brownish black pupil because it absorbs most of the light. ठीक है ना? Because it absorbs most of the light. If somebody have, I was reading today only 2% of people in the whole world have green pupil, because it is reflecting that green component of that particular light, and rest all others are getting absorbed, right? Iris, this is iris. Iris controls or regulates the amount of light entering to the eye. They haven't written here because this is according to class 8, but there there are two jelly shaped liquid. One is present between cornea and this is eye lens. Normally convex lens is naturally present in our eye because convex lens is converging lens. It converges the parallel light rays on the retina. देखो बेटा, दो चीजें होती है. अगर आप अभी मेरे पास बैठे हो तो आपसे जो रेज आएंगी वो आई लेंस पर आएंगी कुछ इस तरीके. ये डायग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाले डायग्राम भी. ठीक है ना? सबसे पहले आप इसकी सारी कंस्ट्रक्शन देखो. ये सिलरी मसल्स होती हैं. यहाँ पर काफी सारी चीजें 8th क्लास में मिसिंग है, बट यू शुड नो ऑल दिस. हाँ, दे हैव रिटन हियर. दीस आर सिलरी मसल्स. ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं और यही आई लेंस को होल्ड भी करके रखती हैं, और अकॉर्डिंगली आई लेंस भी थिन और थिक होता है. आई लेंस इज द नेचुरल लेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर आई, और आई लेंस जो है कन्वेक्स लेंस है. यहाँ पर कन्वेक्स लेंस द वन विच इज थिकर एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस. ठीक है? अगर कन्वेक्स की बजाय कनकेव होता तो सबके सब अंधे होते, क्योंकि कनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. वो डाइवर्ज करता लाइट रेस को, तो रेटिना पे लाइट रेस स्ट्राइक ही ना करती. और रेटिना स्क्रीन का रोल प्ले करता है. ये रेटिना है यहाँ पर. ठीक है ना? ये स्क्रीन का रोल प्ले करता है. यहीं पे सारी इमेजेस बनती है. और एक बात और, रेटिना रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है, राइट? ये ध्यान रखना हमेशा. इसके अलावा बेटा जेली टाइप लिक्विड होता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर. ठीक है? और आई लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर. अब ये एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, इन सब का काम है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना और कैरी फॉरवर्ड करना. ठीक है?
इसके अलावा एक और रीजन होता है बेटा, ये ऑप्टिक नर्व है। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है ये ब्रेन तक, जो भी आपने देखा है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व का है। और एक और रीजन यहाँ पर होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है बेटा, वहां कोई लाइट फॉल नहीं करती, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, वहां कोई लाइट फॉल नहीं करती। तो कंस्ट्रक्शन आपको कुछ ऐसे लिखनी है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आइरिस। लिखना है आइरिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट्स फंक्शन इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। कॉर्निया, it is represented as capital C in the given diagram. The outward bulging portion is called cornea. Pupil, there is a hole in the middle of the iris called pupil. I have already told you, because it absorbs maximum amount of light, hence it is of brownish black color. Then aqueous humor, represented by capital A in the diagram. They are jelly type liquid present between cornea and eye lens. Ciliary muscles contract और expand करती है accordingly. जब आप पास की चीजें देख रहे हैं तो जो रेज आती है डाइवर्ज आती है लेंस के ऊपर, और जब दूर की चीजें देख रहे हैं तो पैरेलल रेज आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और दोनों रेज का एक ही ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, अगर आप कैमरा में अभी भी आपके, अगर आईफोन यूज कर रहे हो, कोई भी फोन यूज कर रहे हो, कैमरा में दूर की पिक खींचनी है तो आपको जूम को एडजस्ट करना पड़ता है, पर हमारी आंख में ऐसा कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सेप्शन जो है वो आपको पास और दूर की चीजें साइमल्टेनियसली देखने में हेल्प करता है। और जैसे जैसे सिलरी मसल्स का मतलब चेंज होगा, वैसे वैसे ही उसके अंदर जो कन्वेक्स लेंस फिट है वो भी अकॉर्डिंगली थिक और थिन हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब सपोज करो कोई भी है ना, यहाँ पर एक स्ट्रेट इरेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ए बी, आप इसे एक गुलाब का फूल मान सकते हो, एक मार्कर मान सकते हो। इस पर सन रेज या एलईडी की रेज फॉल कर रही है, इससे रिफ्लेक्ट बैक होके वो रेज आगे कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है। अगर तो ये ऑब्जेक्ट पास में पड़ा है तो रेज डाइवर्ज आएंगी। देखो, सबसे पहले आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। कन्वर्ज का मतलब है जैसे कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि जो पैरेलल लाइट रेज है एक पॉइंट फोकस पे मीट कर जाती है, दैट इज कन्वर्ज, ये ध्यान रखना। और डाइवर्ज का मतलब है बेटा एक ही पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही है, दैट इज डाइवर्ज। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज बड़े अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कन्वर्ज में क्या हो रहा है, पैरेलल रेज एक पॉइंट फोकस पे मीट कर जाती है, राइट टू द लेंस मीट कर जाती है कन्वर्जिंग लेंस में, और डाइवर्ज में एक पॉइंट से रेज निकल रही है और वो आगे जब पास करती है फर्दर पैरेलल हो जाती है। तो अगर तो ऑब्जेक्ट ए भी पास में पड़ा हुआ है तो डाइवर्ज रेज आएंगी, और अगर दूर में पड़ा हुआ है तो पैरेलल रेज आएंगी वहां से, कॉर्निया के थ्रू एंटर करेंगी। एक्वस ह्यूमर ये सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इन रेज को, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट होती है। कन्वेक्स लेंस में से पास करेंगी, ये सिलरी मसल का काम है कि वो पास है तो कन्वेक्स लेंस का साइज थिक हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो कन्वेक्स लेंस का साइज थिन हो जाता है, सिलरी मसल स्ट्रेच हो जाती है अकॉर्डिंगली और रिलैक्स हो जाती है, कहने का मतलब है। और ये सारा का सारा फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का बस इतना सा फंक्शन है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करना। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट था, इरेक्ट ऑब्जेक्ट था, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट था, इसकी इन्वर्टेड इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी, चाहे वो पास रखा ऑब्जेक्ट चाहे दूर रखा है। इरेक्ट इमेज कहां बनेगी, इसकी इन्वर्टेड इमेज कहां बनेगी, रेटिना पे बनेगी। इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मतलब अगर यहां पर एक सीधा गुलाब है या सीधा ऐसे मार्कर है तो रेटिना पे वो कैसे होगा, उल्टा होगा। फर्दर ऑप्टिक नर्व ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजेंगे, ब्रेन विल प्रोसेस दैट दिस इज द इमेज ऑफ एन इरेक्ट ऑब्जेक्ट, तभी हमें चीजें सीधी नजर आती है। बात समझ आई? थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि आपको ऐसा क्यों उल्टी क्यों बनती है, क्योंकि बेटा जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह है, और स्क्रीन जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेजेस से बनाता है। इवन जो हम मूवी भी देखते हैं ना, तो प्रोजेक्टर के आगे
इन्वर्टेड यानी कि उल्टे नेगेटिव रोटेट कराए जाते हैं। उल्टे का उल्टा होता है सीधा, तभी इरेक्ट इमेज बन पाती है स्क्रीन पे जो हमें नजर आती है जब हम मूवी देखने जाते हैं। ठीक है, अब दो तरह के सेल्स होते हैं बेटा। ये ह्यूमन आई में आप वर्किंग जो है इसकी पैराग्राफ फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो और कंस्ट्रक्शन को पॉइंट्स में लिख सकते हो। अब बेटा ये थोड़ा सा इसकी पिक ले ली थी आपने, पिक्चर ले ली थी, नहीं ली थी? ओके क्लास ध्यान दीजिए, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड शेप्ड सेल्स, एक होते हैं कोन शेप्ड सेल्स। इसका मैंने हिंट भी बता रखा है, RI और CC। जो रॉड शेप्ड सेल्स होते हैं बेटा वो इंटेंसिटी का मतलब है चमक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो कॉन शेप्ड सेल्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस नाम की प्रॉब्लम है, अधिकतर रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस होती है। अगर मान लो मुझे रेड और ग्रीन कलर में कलर ब्लाइंडनेस है, आप मुझे शॉपिंग के साथ ले जाओगे, आप रेड टॉप दिखाते रहोगे, मैं ग्रीन ही कहता रहूँगा अच्छा लग रहा है। सारे जो प्लांट्स हैं मुझे वो रेड नज़र आएंगे, मतलब रेड चीज़ें ग्रीन नज़र आएंगी, ग्रीन वाली रेड नज़र आएंगी। तो कैरम खेलने में, स्नूकर खेलने में, बिलियर्ड्स खेलने में ऐसे बंदे को बहुत प्रॉब्लम होगी। और कलर ब्लाइंडनेस का कोई क्योर नहीं है। और होती किस वजह से है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कोन शेप्ड सेल्स। आप लोगों ने कभी सोचा है मुर्गा चिकन सुबह उठ के बांग क्यों देता है? कभी सोचा है? उसका रीजन ये है कि जो मुर्गा है, चिकन है, उसमें रॉड शेप्ड सेल्स कम होते हैं और रॉड शेप्ड सेल ही इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ऐसे सर्दियों में शाम होगी तो चिकन को दिखना कम हो जाता है शाम के समय, जैसे शाम होती है, और रात के समय वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं एक तरह से, समझ रहे हो? मतलब उसकी आंखें चली जाती हैं। और सुबह जब सनराइज होता है धीरे धीरे लाइट आना शुरू होती है तो समझ लो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं, तो वो खुशी में वो देता है। कभी सोचा आपने? ठीक है, ध्यान रखना, राइट? ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन कि व्हाई अ चिकन राइजेस अप अर्ली एंड स्पीक्स। उसका यही रीजन है, ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स। ठीक है, ऐसे उल्लू में उसमें क्या होगा, उसकी रॉड शेप्ड सेल ज्यादा होते हैं, तभी वो रात में भी देख सकता है। ठीक है ना? तो ये सब रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल्स का खेल है। तो जैसे उसके ज्यादा रॉड शेप्ड होते हैं तो वो दिन में, तो वो डिम लाइट में, तो दिन में तभी वो है ना थोड़ा ब्लाइंड हो, जब लाइट ज्यादा आती है ना तो वो एक तरह से ब्लाइंड, क्योंकि ज्यादा लाइट पड़ती है उनकी आईज में। आप खुद भी देख लो ना, सन की तरफ देख लो, जब लाइट ज्यादा पड़ेगी तो हम भी तो एक तरह से आंखें बंद करनी पड़ती है हमें। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड सेल्स का ये ब्लाइंड स्पॉट मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसा रीजन जहां पर कोई लाइट फॉल नहीं कर सकती। एक एक्टिविटी है जिससे आप भी अपना ब्लाइंड स्पॉट देख सकते हैं। ये वाली एक्टिविटी आप खुद कर लेना, बड़ी सी इजी सी है, राइट? परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो ये बड़ी सिंपल सा है कि अगर आप सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पे, अभी मैं सामने फोकस कर रहा हूं, लगातार 30 सेकंड तक देखो उसकी तरफ और एकदम से अपनी आंखें बंद करो, तो भी आपको उसी ऑब्जेक्ट की इमेज अपनी आंखों के सामने नजर आएगी। आप करके देख सकते हो एक्टिविटी। किसी भी चीज पे फोकस करो और एकदम से अपनी आंखें बंद करो, तो भी आप उसी चीज को, जैसे अगर मैं सामने बॉटल पे फोकस कर रहा हूँ 30 सेकंड तक और एकदम से आंखें बंद कर लूँ तो भी बॉटल नजर आएगी। यही फिनोमिना है कि ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज परसिस्ट फॉर and it remains on the retina for about 1/16 of a second। 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वो जो इमेज होती है हमारे रेटिना पर रहती है। कि ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इवन आफ्टर इट्स रिमूवल फॉर 1/16 of a second। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ठीक है, आई विल रीड देयर डेफिनेशन ऑफ दिस। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज परसिस्ट on the retina for about 1/16 of a second even after the object has disappeared from our view। The ability of eye to continue to see the image for an object for very short duration even after the object has disappeared from view is called persistence of vision। If the और यही फंडा था, पहले मैंने आपको बताया है काफी बार, 1920s तक जब चार्ली चैपलिन की मूवी आती थी तो क्या होता था, स्टिल्स होती थी और उस समय मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो होता क्या था, फोटो लगा लेते थे और है ना जो भी डायलॉग था वो एक बोर्ड पे, कार्डबोर्ड टाइप पे लिख के रखते थे। ऐसे होती थी मूवीज, समझ आई बात? ऐसे स्टिल्स होती थी।
पर जब मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी कैसे आई, इन्होंने ये देखा कि अगर 16 फ्रेम पर सेकेंड स्टिल पिक्चर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की फ्लैश्ड ऑन आवर आईज एट द रेट फास्टर देन, मतलब 16 फ्रेम, 16 जैसे मान लो मेरे यहां से यहां तक चलने की 16 फोटो ले लिया आपने, और प्रोजेक्टर के सामने वो 16 फोटोज पर सेकेंड या 16 से ज्यादा फ्रेम पर सेकेंड रोटेट कराई जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आएगा। बात समझ आ रही है? प्रोजेक्टर और इन्वर्टेड नेगेटिव लगाने हैं मेरे। पहले जो कैमरा आते थे नेगेटिव्स, उसमें रील लगती थी। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है, ठीक है? तो उसमें भी हमारा डिजिटल जो व्यू होता है ना, वो छप जाता है, एक तरह से डिजिटल इमेज हमारी छप जाती है। तो 16 या 16 से ज्यादा फ्रेम पर सेकंड अगर रोटेट कराए जाएंगे तो वो पिक्चर क्या होगी, हमें मोशन में नजर आएगी, ठीक है ना? आप लोगों ने कई बार वो नहीं देखी, मैंने एक मतलब देखते नहीं हो, एक ऐसी वो बुक्स आती हैं जो बच्चे बनाते हैं, क्या कहते हैं उसे, फ्लिप बुक, राइट? तो उसमें वो चीजें मोशन में क्यों नजर आती हैं? क्योंकि आप मोर देन 16 फ्रेम्स पर सेकंड उसके मूव कर रहे हो, ठीक है ना? आप देख, तो वो यही फंडा है। जब ये फंडा समझ आया साइंटिस्ट को, लोगों को, तभी से मोशन पिक्चर टेक्नोलॉजी हो पाई। फिर उसके बाद डायलॉग्स को रिकॉर्ड किया गया और उनको सेट किया गया। जो भी डायलॉग में बोल रहा हूं उसको किसके साथ सेट किया गया कि मेरे जो भी मैं परफॉर्म कर रहा था एक्टिविटी, तब जाके अब जो है हम मूविंग पिक्चर्स देख पाते हैं। समझ रहे हो बात? ठीक है ना? आप बेशक ये बात नेट पे भी सर्च कर सकते हो। आला मारा करके कोई पिक्चर थी इंडियन, उसकी तो पहले, ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं। तो ये परसिस्टेंस ऑफ विजन का ही कमाल है, ठीक है, इस फंडे का। और इमेज ऑफ विजन की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है। मतलब आप कहोगे कि नहीं सर, आप तो 25 सेंटीमीटर से पहले पास में किताब रख लूँ तो भी पढ़ सकते हो, पढ़ जरूर पाओगे, लेकिन स्ट्रेन स्टार्ट हो जाएगा आपकी आईज में, ठीक है? और इन्फिनिटी का मतलब है अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं तो आप बिल्कुल दूर, अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता अर्थ का, तो हम प्लैनेट्स को भी आराम से देख पाते हो, स्टार्स को देख पाते हो ना। कई स्टार तो हमारे सोलर सिस्टम से भी बियॉन्ड है, इसमें मार्स हम लोग देख सकते हैं। कई पर्टिकुलर डेज पर, कई पर्टिकुलर पोजीशंस पे आप देख सकते हो कई प्लैनेट्स को। ये तो एटमॉस्फेयर ने ढक रखा है ना सारा, अगर ये क्लाउड्स ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो आप ऐसे देख पाते हो, ठीक है? सो क्लास 8 ये हो गया। इसके बाद बेटा एक और है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। वैसे तो 4 मेन डिफेक्ट होते हैं। पहला मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, एक एस्टिग्मेटिज्म होता है, और एक होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के 2 टाइप होते हैं, वाइट कैटरेक्ट और ब्लैक कैटरेक्ट, ठीक है? पर अभी जैसे आपके सिलेबस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ही है सिर्फ, है वो भी है। ओके, 1 बाय 1 बात करेंगे, और क्लास 10 के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम डायग्राम के साथ इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसका हिंट भी मैंने बना रखा है। MS धोनी इंडिया में रहते हो तो MS धोनी तो याद ही होगा सभी को, ठीक है? तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मायोपिया? द अदर नेम ऑफ मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया का दूसरा नाम है बेटा शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है? MS धोनी से याद रखना। द अदर नेम ऑफ मायोपिया इज शॉर्ट साइटेडनेस। मैं बोलूँ आई हैव अ शॉर्ट साइटेड आई, मतलब मुझे पास का तो अच्छे से नजर आता है, पर दूर का देखने में मुझे ब्लर नजर आता है, ठीक है? सो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ अ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली बट ही कांट सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली, वो उसे ब्लर नजर आता है। अब मायोपिया के केस में होता क्या है, जो इमेज होती है ना वो रेटिना के बिहाइंड बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है, ध्यान रखना। और अगर आप कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ यूज करें, ये नहीं कोई भी कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ यूज करेंगे तो इमेज रेटिना पर बन जाएगी और आप ढंग से देख पाएंगे। अधिकतर बच्चों में दूर की नजर कमजोर होती है, राइट? मायोपिया का सिंपल सा मतलब है दूर की नजर कमजोर होना, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है पास की नजर, ठीक है? अब हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, हाइपरमेट्रोपिया हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है। हाइपरमेट्रोपिया को कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। आई रिपीट, हाइपरमेट्रोपिया इज कॉल्ड लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ लॉन्ग साइटेड आई और फार साइटेड आई, मतलब मुझे दूर का तो अच्छे से नजर आता है, पर पास का देखने में, पढ़ने में, रीडिंग में खासकर दिक्कत पैदा होती है, ठीक है ना? रीड करने में कि क्या लिखा हुआ है बुक में, तो मैं कहूँगा आई हैव अ फार साइटेड आई। थोड़ा सा मतलब इनको आपको मीनिंग समझना है।
Hypermetropia is that defect of a vision in which a person can see the far off things clearly but he can't read the things. He cannot see the nearby things properly. ठीक है ना, ये far sightedness है. अब far sightedness में क्या होता है बेटा, इमेज रेटिना से पहले बनती है, और अगर आप कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ यूज करोगे तो इमेज रेटिना पर बन जाएगी, राइट. तो ये ध्यान रखना. इसके अलावा तो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद कहते हैं इसे हिंदी में. कैटरेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू ग्रेजुअल, मतलब पूरी जिंदगी यू नो आई लेंस हमारा हेजी हो जाता है क्योंकि सिलरी मसल्स लगातार मूव करती रहती है, जिसकी वजह से आई लेंस हेजी हो जाता है. तो इस वजह से क्या होता है, एक स्किन मेम्ब्रेन होती है वो आई लेंस के आगे आ जाती है, इसकी फिर सर्जरी होती है कैटरेक्ट की, राइट. तभी ये डिसीज से तुम्हें अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 60 के बाद ही होती है, ठीक है. और हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, आजकल तो मैं देखता हूँ हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम बच्चों में ही हो जाती है, ठीक है. फिर एक और होती है डिसीज, उसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म. एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, उसमें बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और उसको सभी कुछ ब्लर नजर आता है. ऐसे लोग बगैर स्पेक्टिकल्स के ना अंधे व्यक्ति के समान होते हैं, ठीक है. उनके बड़े मोटे से तुम देखोगे लेंस लगते हैं क्योंकि वो बाय सुपर इम्पोजिंग वन सिलेंड्रिकल लेंस ओवर अनदर, कन्वेक्स के ऊपर कनकेव चढ़ा के बनते हैं, ठीक है ना. कई बार तुमने मूवीज में देखा है किसी का चश्मा गिर जाता है, वो बेचारा ढूंढता रहता है, उठा क्यों नहीं लेता, जबकि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वाला आराम से, क्योंकि उन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम होती है. बात समझ आई. तो ये 4 मेन डिफेक्ट है, याद रखना बेटा. इसके बाद बड़ा आसान है कि केयर कैसी करनी, आइज़ को वॉश करते रहो, तुम्हें पता ही है, ठीक है. और आइज़ ऑफ अदर एनिमल 150 डिग्री तक का विजन होता है, हमारी 2 आइज़ से आप देख सकते हो 150 तक का, लगभग 150 to 180 के बीच में. और विजुअली चैलेंज पीपल, ये ब्रेल लैंग्वेज थी मिस्टर, आपको पता ही है, उसमें लेटर्स थोड़े उभरे हुए होते हैं, तो उसकी हेल्प से जो अंधे व्यक्ति हैं, जो ब्लाइंड हैं, वो पढ़ पाते हैं, ठीक है. तो ये जो थे जिन्होंने की थी वो खुद भी विजुअली चैलेंज थे, राइट. उन पे डॉट्स होती हैं, ठीक है ना. इसका अलग अलग, ए का अलग तरीका होता है लिखने का, डॉट्स होती हैं, वो उभरी हुई होती हैं, बल्जिंग आउटवर्ड होती है, तो ठीक है. तो ये सब बेटा आप पढ़ के देखिएगा. ह्यूमन आई बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है और बहुत इंफॉर्मेशन भी है. थैंक यू.